Hello and welcome. You're watching Follow the Leader. I'm Sonal Mehrotra Kapoor, and this time we come to you from Punjab. Punjab, which goes to polls in less than 2 weeks from now, and this time it's a very interesting and a very close fight. Punjab's new poster boy Arvind Kejriwal is here, and he claims that how the Jharu sweep Delhi, it will be sweeping Punjab all over again. We are here in Chandigarh today, from where Arvind Kejriwal is going to start his roadshow, go all the way to Patiala, and give Amrinder Singh, Captain Amrinder Singh, a fight on his home turf. So let's go inside and try and decode Arvind Kejriwal and the Jharu phenomenon here in Punjab. Punjab, which goes to polls in less than 2 weeks, and this time it's a very interesting and a neck-to-neck fight. Punjab's new poster boy Arvind Kejriwal is saying and claims that how the Jharu swept Delhi, it'll be the same impact here in Punjab. And joining me is the man himself. You're being called Punjab's new poster boy, and today you start your new rally where you are contesting and going to challenge the captain on his home turf in Patiala. But before that, just tell me, before I ask you, when we're going to be spending 24 hours with you to try and understand how and decode Arvind Kejriwal and the Jharu phenomenon here in Punjab, usse pehle tell me, how is it going? What is your general sense that you're getting here in Punjab? मुझे जो लग रहा है पंजाब में घूम के और लोगों से बात करके कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जैसे मैं दिल्ली के बारे में कहता हूँ, 70 में से 67 सीट आई थी। ये कुछ ना कुछ कुदरती चमत्कार था, कुदरत का कुछ, ऊपर वाले का कुछ करिश्मा था। जैसे मैं कहता हूँ, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। ऐसा ही कुछ अद्भुत इस टाइम पंजाब में हो रहा है। हमारी वजह से नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो जनता जो इतना, जहाँ भी जा रहे हैं लोग, पूरे इतने लोग आ रहे हैं, जिससे भी सड़क पे बात करो वही कह रहा है झाड़ू को वोट देंगे। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा होने वाला है। I'm not going to ask you hard political questions straight up. I want to first understand how has been your experience in Punjab. Punjab is known for its food, and we are sharing breakfast with you today. Chole bhature and all that. Are you enjoying your time? Are you enjoying the warmth here? बहुत मजा आ रहा है। And people that you meet, उनसे कितना and it's just been a sheer pleasure. जब से हम लोग यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और पिछले 1-1.5 साल से गांव-गांव में जा रहे हैं। इट्स मतलब एक दोनों चीजें हैं। लोग इतने अच्छे हैं, पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत यूथफुल हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। लेकिन बादलों की सरकार ने पंजाब का जो हाल कर दिया, हंसते खेलते पंजाब को बिल्कुल नशे में डुबो दिया। ये ऐसा पंजाब नहीं जानते थे लोग। इसको, ये अब सबको मिलके इसको ठीक करना है। आपके जैसे जनरली आपका जब दिन शुरू होता है कैंपेनिंग में, you start up by meeting people, you do more things. What is the general routine like? Routine तो every day is a new day. So there's no routine. There's no routine. There's no routine. And family and wife, everybody away. हाँ, सब लोग दिल्ली में हैं। मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, दिल्ली भी चला रहे हैं साथ साथ। We heard, we saw your wife also campaign. We saw your wife also campaign for a few days when she was here. She came. हाँ, आपके बच्चों ने भी करा था। 2 दिन आए थे वो। And they enjoyed. अमृतसर में थे वो लोग। हाँ। Are they also feeling the same sense or? Yes. उनको भी लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ कुदरत का कुछ करिश्मा हो रहा है। All right, so here we're going to wrap up our breakfast with Arvind Kejriwal and find him en route Patiala as he goes and challenges Captain on his home turf. So that's Arvind Kejriwal hitting out and setting out for his Patiala rally. We'll be with him in this car to try and find out what that is about. As Arvind Kejriwal heads out for his last leg of campaigning here in Punjab, we are joined by him in this car. We are going to Patiala, somewhere where it is Captain's home turf. You tweeted several times saying that he's going to lose his seat. What makes you say that? बहुत सारे लोगों से जो वहाँ पे बातचीत हुई, पत्रकारों से बातचीत हुई, और जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं
लोग ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब को इतने सालों से वोट देते रहे, बट ही इज कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल। 11 बजे वो सो के उठते हैं, उसके बाद 6 बजे के बाद शाम को अवेलेबल नहीं है। दिन में भी ही इज बेसिकली अ महाराजा। पीपल वांट, लोग चाहते हैं कि उनके जैसा आदमी हो कोई। और हमारे जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर साहब, वो थ्रू आउट लोगों के बीच में रहते हैं, समाज सेवा करते हैं और बहुत सारे। तो इस बार लोग कैप्टन साहब को हरा के उनको जिताना आप और कैप्टन साहब एक दूसरे को काफी ट्रोल भी करते हैं ट्विटर पर। उनकी एक आदत है, वो आपको स्नीकी लिटिल फेलो बुलाते हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह सकते हैं मुझे। उन्होंने ये भी एक थ्योरी आया था 2-3 दिन पहले, दैट इनफैक्ट एवरीबडी वाज सेइंग दैट टू डिफीट आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर वेव इतना स्ट्रांग हो गया है इस समय पंजाब में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस व्हाट आई हैव हर्ड, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अकालीज एंड कांग्रेस जस्ट माइट जॉइन हैंड्स टू दिस। कल कैप्टन साहब ने बहुत ही रिबटल करते हुए बहुत स्ट्रेट रिस्पॉन्स दिया कि कुछ हो जाए, मैं अकालीज के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा और केजरीवाल फिर भी हारेगा, 2/3 मेजोरिटी से उनकी सरकार बनेगी। वो जो मर्जी कहते रहे, अब तो आप भी मान रहे हैं, एनडीटीवी भी मान रहा है कि बहुत स्ट्रांग वेव है। एनडीटीवी नहीं मान रहे, हम बस बता रहे हैं। सोनल मान रही है, ओके, सोनल मान रही है कि अब बहुत अच्छी वेव है। अकाली दल और कैप्टन साहब मिलके रल मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो अब सबको पता चल गया, पूरा पंजाब जानता है। और इनकी जो दोस्ती है वो अभी नई नहीं है। जैसे 3 साल पहले मजीठिया के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होने वाली थी, कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से बात करके उनकी सीबीआई की इंक्वायरी रुकवाई। अगर उस टाइम सीबीआई इंक्वायरी हो जाती, मजीठिया गिरफ्तार हो जाता, तो आज नशा नहीं होता इतना पंजाब के अंदर। 2 महीने पहले कैप्टन साहब के खिलाफ जितने करप्शन के केसेस चल रहे थे, बादलों ने वो सारे बंद करवा दिए। अभी प्रकाश सिंह बादल बुरी तरह से हारने वाले थे लंबी में, अभी भी हारेंगे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए, हमारे कैंडिडेट के वोट काटने के लिए कैप्टन साहब ने लंबी से अपना पर्चा भर दिया। अभी एक पत्रकार मेरे पास आया था, वो बता रहा था कि सुखबीर बादल और कैप्टन साहब के बीच में 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, पर्सनल मीटिंग्स हो चुकी हैं, हाउ टू फाइट इलेक्शंस टुगेदर एंड हाउ टू डिफीट आम आदमी पार्टी। तो सब लोग जानते हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, बहुत बुरी तरह से मिले हुए हैं। अगर कल को लोग अगर कैप्टन साहब को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, वो वोट सीधा सुखबीर बादल के पास जाएगा, मजीठिया के पास जाएगा। तो लोग इन दोनों को हराना चाहते हैं, दोनों को वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक तरह से अकाली दल की बी टीम है, कांग्रेस बोल रहे हैं कि वो बी टीम है। उनका कहना है कि आप एंटी इनकम्बेंसी वोट तोड़ेंगे और उससे सिर्फ अकालीज को ही बेनिफिट होना है। तो वो ये बता दे कि उन्होंने मजीठिया की इंक्वायरी क्यों बंद कराई थी 3 साल पहले। उन्होंने कहा था मजीठिया मेरा भतीजा है, तो उन्होंने मजीठिया की इंक्वायरी क्यों बंद कराई? बादलों ने कैप्टन साहब के सारे केसेस क्यों बंद किए? अभी लंबी से वोट काटने के लिए क्यों जा रहे हैं? हम तो सबूत दे रहे हैं, केवल कह देना कि ये उसकी बी टीम है। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये भी आया है कि कैप्टन साहब एक तरह से आपकी थ्योरी भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जाकर बनारस में बोला था मैं नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट लड़ूंगा, अब वो कह रहे हैं मैं भी जाके लंबी में बादल के अगेंस्ट लड़ूंगा। लड़े, पटियाला छोड़ दे। एक अखबार के इंटरव्यू में उन्होंने कहा पटियाला में जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, तो लंबी आप हारने के लिए लड़ रहे हैं। पटियाला छोड़ दें, लड़े, फिर पूरी शिद्दत के साथ लड़े। हमारा जर्नैल सिंह, सीट नहीं होना चाहिए। हमारा जर्नैल सिंह 1 सीट से लड़ रहा है क्योंकि बादलों को हराना है। हमारा भगवंत मान 1 सीट से लड़ रहा है क्योंकि सुखबीर बादल को हराना है। हमारा हिम्मत शेरगिल 1 सीट से लड़ रहा है। ये नाटक नहीं कर रहे। वी हैव विजिटेड सेवरल स्टोरीज एंड बहुत स्पेक्टेकुलर स्टोरीज निकल कर आई हैं, जो एनआरआईज अपना काम छोड़ के, छुट्टी लेकर, पैसे छोड़ के यहाँ पर आके आपके लिए कैंपेन कर रहे हैं। नाउ दे हैव गॉन वेरी अग्रेसिवली अगेंस्ट देम। हरसिमरत कौर ने तो ये भी बोला कि अगर निकल आए, उतर आए वो लोग अपनी अकालीज, तो देख लेंगे। मतलब ये जिस तरह से एनआरआईज को दोनों टारगेट कर रहे हैं, कैप्टन साहब भी टारगेट कर रहे हैं कि एनआरआईज को वापस भेजो, एनआरआईज को वापस भेजो। एनआरआईज अपने ही तो लोग हैं, उन्हें अपना देश छोड़ के क्यों जाना पड़ा? क्योंकि तुम लोगों ने पंजाब को इतना बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया, उन लोगों को बेचारों को अपना घर छोड़ के बाहर नौकरी लेने जाना पड़ा। अब वो वापस आके पंजाब सुधारना चाहते हैं। अब तुम कह रहे हो कि तुम बाहर के लोग, हम तुमको आने नहीं देंगे। आपको लगता है एनआरआईज बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस इलेक्शन में? सभी फैक्टर होने वाले हैं, एनआरआईज भी फैक्टर है, पंजाब की जनता भी फैक्टर है। एक चीज ये समझ लीजिए, ये वाला चुनाव नेता नहीं लड़ रहे, ये वाला चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही, ये चुनाव पंजाब की जनता लड़ रही है। पंजाब की जनता ने मन बना लिया है, नशे से परेशान हो चुकी है। पंजाब की जनता ये देख रही है कि नशा अगर कोई खत्म कर सकता है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी खत्म कर सकती है।
कैप्टन साहब जब मजीठिया के साथ मिले हुए हैं, कैप्टन साहब जब बादलों के साथ मिले हुए हैं, वो कैसे नशा दूर करेंगे? नशा दूर करना था अभी 10 साल से क्या कर रहे थे वो? उन्होंने मजीठिया को क्यों बचाया? उन्होंने मजीठिया को, सीबीआई की इंक्वायरी होती, मजीठिया गिरफ्तार हो जाता, पंजाब में नशा बंद हो जाता, क्यों नहीं करने दिया उन्होंने? कैप्टन साहब के सामने अभी जो उनके न्यू पार्टनर आए हैं, दैट इज सिद्धू, समबडी जो आपके साथ भी टॉक्स हो रही थी, आपको लगता है हैज आम आदमी पार्टी लॉस्ट एनीथिंग बाय लूजिंग नवजोत सिंह सिद्धू? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने जैसे बताया ना कि ये चुनाव कोई सिद्धू, कोई कैप्टन, कोई केजरीवाल नहीं लड़ रहा। ये चुनाव पंजाब की But was it a disappointment that Sidhu, after such level of talks, did he get ambitious? Only he can tell. I really don't know. But he was clearly in talks with you. It did not go through. We offered him deputy CM. He refused, and he went to Congress. So only he can tell what the Congress has offered him. All right. On the issue of deputy CM, आपने promise करा है कि एक दलित face बनेगा deputy CM. That has resonated with Dalit candidates, which are the maximum Dalit people who are maximum in Punjab. क्या रहने वाला है उस पर? कुछ नहीं, दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं और उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, तो एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक तो ये होता था कि दलित समाज के लिए ये रिजर्वेशन है, तो हर एक पार्टी की मजबूरी है कि जितना रिजर्वेशन है उतना उनको देना। डिप्टी सीएम का कोई रिजर्वेशन नहीं है। पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए कि बराबरी का हक देना है, सम्मान देना है और उनको अपने बारे में और सारे समाज के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देना है। All right, so that is Arvind Kejriwal for the moment. He's going to go across and be around for a road show, after which we'll catch more glimpse of him. आपकी खांसी वैसे वापस आ गई है, मैं पूछना चाहती हूँ। ये पिछले कुछ दिन से वो बुखार चढ़ गया पिछले हफ्ते। I hope it goes back fast. Yeah, what exactly happened? Has Punjab been treating you well otherwise? नहीं, तो पंजाब has been treating me very well and बहुत मजा आ रहा है पंजाब में कैंपेनिंग करके। Your Punjabi we've heard lots about. कैप्टन साहब ने बोला जहाँ के जिनकी कंस्टिट्यूएंसी हम जा रहे हैं कि आपने ट्यूटर लेके घर पे रखा है, वो आपको सिखाता है पंजाबी। मुझे फुल्का जी ने सिखाई है। मैं पंजाबी समझ लेता था पहले भी, बिकॉज दिल्ली में तो पंजाबी बहुत चलती है। Your mother, you said. हाँ, मेरी मम्मी तो वो अनडिवाइडेड पंजाब होता था ना जब हिसार से पढ़ी थी, उन दिनों में उनके स्कूल में भी पंजाबी सिखाई जाती थी। सो शी कैन राइट रीड वेरी वेल। लेकिन मैं लिख पढ़ नहीं सकता था पहले, वो मुझे फुल्का जी ने सिखाई। So what, there were tuition classes every day? एक हफ्ता लगता है। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। Just in 1 week? हाँ। How do you think it will play a factor that now you're talking to them? this as a मैं किसी को जाके थोड़ी कहता हूँ मेरे को पंजाबी से आ गई है, बट आई एंजॉय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई एंजॉय रीडिंग मटेरियल ऑन दैट। Alright. Another question I want to ask you is that Punjabi, Sikh, these identities are very strong and very eternal to a state like Punjab. ये भी बोला जा रहा है, आपने प्रॉमिस करा है यहाँ से सीएम निकलेगा और एक पंजाबी सिख सीएम बनेगा। Lots of names are floating. One of your candidates has already declared, कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि almost it's certain that Bhagwant Mann will be the CM. Is that true? वो तो समय आने पे बता देंगे कि सीएम कौन होगा। सबसे पहले एनडीटीवी को बताएंगे। No, but it will be a Sikh. It will be फ्रॉम पंजाब। मैंने बोला है ना कि पंजाब का ही होगा। दिल्ली का मतलब ये कंट्रोवर्सी उठी थी जब मेरे ऊपर ये था कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनेगा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, मैं दिल्ली की जिम्मेदारी पूरी करूंगा। मैं दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल 5 साल केजरीवाल के वादे को निभाएंगे और यहाँ पर पंजाब का व्यक्ति सीएम बनेगा। पंजाब के व्हाट विल बी द प्रोसेस? हाउ विल यू डिसाइड दैट? एमएलएज डिसाइड करते हैं, संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एमएलएज विल डिसाइड। ऑलराइट।